A very good afternoon to all of you. Respected Chairperson, Dr. Professor Govind Asati sir, respected President of Rognidan Academy, Professor Pavan Kumar Godatwar sir, respected Secretary Dr. Atul Vashne sir, who is coordinating all these functions, our resource person for today, Professor Dr. Deepti Parashar ma'am, who is present with us in this session, all the respected dignitaries who are the experts in the field of Rognidan from all over India who have joined us today, dear scholars and colleagues. We welcome you all in this 38th lecture of Rognidan Academy, which is being conducted through online platform for sharing of knowledge and experience. Before commencing with the workshop, we will invoke the blessings of Lord Dhanvantri, for which I would like to recite the Dhanvantri Stavan. And we request all of you to please join. Namami Dhanvantarim Adidevam Surasure Vandit Pad Padmam Loke Chararuk Bhayamrityunasham Dataramisham Vividhoshadinam Dhanvantarim Ramanatham सर्वरोगनिवारकम् आयुर्वेदो प्रवक्तारं वन्दे पीयूषदायकम् सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् Om Shanti, Shanti, Shanti. After invoking the blessings of Lord Dhanvantri, we request the permission of our chair, Professor Govind Asati sir, to begin with today's session. Sir, may we have your permission to start the session? Yeah, Shalini madam. Thank you very much. Please start the session, today's session by Dr. Deepti Parashar madam. Okay, thank you very much, sir. So I would like to introduce our resource, Dr. Deepti ma'am, for today. Ma'am is professor and having a teaching experience of more than 21 years. And ma'am has published 2 books on the subject of Rognidan. Ma'am has been awarded with the Best Paper Award, and ma'am has presented her papers in various national and international CMEs, seminars, workshops, and has been a speaker in various conferences. Ma'am has chaired and co-chaired many international and national conferences, and ma'am is also contributing as chairperson of College Women's Cell. We have heard ma'am various times before also, and it's a privilege to hear once again ma'am on this platform, and we request without taking much time for her deliberation and hand over the mic to respected Dr. Deepti Parashar ma'am for her deliberation today. Ma'am? Over to you, ma'am. Thank you, Dr. Shalini. Am I audible now? Yes, ma'am. Yes, madam. Yes, ma'am. सभी विद्वज्जनों को प्रणाम. असाटी सर, अतुल सर, शालिनी मैडम, पवन सर, इस मंच से फिर से मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ. रोगनिदान परिषद ये एक हमारा परिवार बन चुका है और इस परिवार में सहयोग देने का मौका जो है हमें बार बार मिलता है, इसके हम बहुत ही आभारी हैं. तो आज के इस चर्चा सत्र पे हम आते हैं. अचानक से जो है मुझे शालिनी मैम का कॉल आया कि मैडम आप इस बार एज ए स्पीकर काम आप आएंगे. तो मैंने उनको बताया कि मैं तो खुद परिषद से जुड़ी हुई हूँ और इसकी जो है कोऑर्डिनेटर भी रह चुकी हूँ और फर्स्ट लेक्चर मेरे लेक्चर से स्टार्ट हुआ था. लेकिन फिर कुछ मैंने बोला कि अगर कोई और होंगे स्पीकर्स तो कोई नहीं, अदरवाइज मैं तैयार हूँ. तो बहुत ही शॉर्ट इस विषय का चुनाव एक मेरे
शुरू में जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में ज्वाइन हुई थी तो जो हमेशा मुझे सेकंड पेपर पढ़ाने के लिए देते थे, तो रोग से रिलेटेड जो लग रहा है आपकी आवाज में, देखिए तो मुझे जो आयुर्वेद था या रिलेटेड अच्छे सिद्धांत में दे रखे हैं। इतना पुरातन और इतना वैज्ञानिक सिद्धांत में देखा है। योगम आदौ परीक्षे तत्वनंतरम औषधम बोला गया है कि हमें चिकित्सा करने से पहले रोग का डायग्नोसिस या रोग का निदान जो है वो करना चाहिए। लेकिन उसमें एक चीज और है कि रोग निदान और चिकित्सा इन दोनों के बीच में और चीज आती है साध्यता की परीक्षा। निदान तो हमने कर लिया, लेकिन वो रोग साध्य है कि नहीं, क्यूरेबल है या नहीं, या इनक्यूरेबल है, इसको जानना एक फिजिशियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक हमें साध्यता का ज्ञान नहीं होगा, हम चिकित्सा जो है, हम प्रोग्नोसिस, मॉडर्न वाले बोलते हैं प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस का मतलब है फोरकास्ट, हम उसके बारे में कोई प्रिडिक्शन करते हैं कि ये रोग जो है साध्य होगा, ये रोग असाध्य होगा, या ये रोग इतने समय के बाद में, इतने कालावधि के बाद में ठीक होगा, या ये ठीक नहीं होगा, या इसकी मृत्यु इतने समय में होगी। तो इस चीज का हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। तो Ma'am, excuse me. We request all the participants to please mute yourself. Please, we request all the participants to mute themselves. Thank you so much. रेफरेंसेस जो है साध्यता के विषय में, यह हमें चरक में भी मिलते हैं, चरक सूत्र स्थान में है, चरक विमान स्थान में है, अष्टांग सूत्र स्थान में है, सुश्रुत सूत्र स्थान में, हमें सभी जगह जो है साध्यता के विषय में रेफरेंसेस मिलते हैं। व्याधि भेद या व्याधियों का जो वर्गीकरण किया गया, उन्होंने प्रभाव भेद से जो है व्याधि को दो प्रकार का बताया है, साध्य व्याधियां और असाध्य व्याधियां। तो ये रोग समूह जो है व्याधि भेद में बताया। उसके बाद चरक में ही जो है इन्होंने बड़े अच्छे से बताया है कि वैद्य सबसे पहले रोग की परीक्षा करे और बाद में जो आगे फिर से चरक बोलते हैं कि साध्य और असाध्य को जानने वाला चिकित्सक ज्ञान पूर्वक यथा समय जो कर्म करता है वह अवश्य सफल होता है। तो अगर हमें पता है कि ये रोग साध्य है और टाइमली अगर हम कोई मेजर्स ले लेते हैं तो आगे जो है हमें सफलता मिलेगी। लेकिन अगर हम साध्यता की परीक्षा किए बगैर रोग साध्य है या नहीं है इसको जाने बगैर अगर हम चिकित्सा करते हैं तो उसके बहुत सारे नुकसान जो है फिजिशियन को, चिकित्सक को उठाने पड़ते हैं। जैसे एक तो उसकी धन हानि होगी, उसका जो नॉलेज है उसके बारे में लोग निंदा करेंगे, उसके यश की हानि होगी। तो इस तरह से जो है आर्थिक, सामाजिक, सोशल जो भी है उसका सारा लॉस होता है। और ऊपर से जो रोगी होता है उसका वो विश्वास खो देता है, क्योंकि अगर आपने कोई व्याधि को ये बोल करके ठीक कर दिया कि मैं इसे ठीक कर दूंगा और वो व्याधि असाध्य है, तो निंदा का पात्र बनना पड़ेगा और लोग जो है बाद में आपको नाम रखेंगे कि ये वैद्य जो है इनको कुछ नहीं समझता है और ये ठीक नहीं हो पाते। एक मैं बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहूंगी कि हम देखते हैं साध्यता के विषय में कि वायरल डिसीज या जो एक नॉर्मल जो वायरल कंडीशन, जो वायरल ज्वर जो है, फीवर जो होता है, उसकी काल मर्यादा हमें पता है कि 3 दिन या 5 दिन की काल मर्यादा होती है। 3 दिन में पेशेंट अपने आप ठीक हो जाता है। साध्य रोग वो होते हैं कि साध्य और सुख साध्य कि जो बिल्कुल अल्प उपाय से अल्प काल में ही ठीक हो जाते हैं। कई रोग ऐसे हैं कि जो आप चिकित्सा करें ना करें, एक टाइम पीरियड के बाद में अपने आप सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये जो वायरल फीवर होता है ये भी सेल्फ लिमिटिंग होता है, 3 दिन या 5 दिन का फीवर होता है। आप उसमें
ट्रीटमेंट करे तो भी ठीक हो जाएंगे, नहीं करे। ऐसे जुकाम के बारे में बोला गया है, जो जुकाम होती है, सर्दी होती है, इसके लिए भी बोला गया है कि अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो 7 दिन में ठीक होंगे, और आप ट्रीटमेंट करेंगे तो 1 हफ्ते में ठीक होंगे। तो ये चीजें ऐसी हैं कि सेल्फ लिमिटिंग चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे कई बार ये वैद्य का सौभाग्य या दुर्भाग्य होता है कि पेशेंट उसके पास किस कंडीशन में और किस समय आता है। अब वायरल फीवर वाला पेशेंट अगर किसी चिकित्सक के पास पहले ही दिन चला जाए तो वो दूसरे तीसरे दिन उस वैद्य को वो गाली देने लगता है कि इसको कुछ नहीं समझता, मेरा बुखार ही कम नहीं है। और वो दूसरे चिकित्सक के पास जाता है और दूसरे चिकित्सक उसको कई एंटीबायोटिक्स और कुछ कुछ दे देता है, और वो तो वायरल 3rd डे वो ठीक होने वाला था, वो 3rd डे ठीक हो जाता है, नाम हो जाता है उस चिकित्सक का कि उसने ठीक कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको समय कब कब और कैसे उस चीज की चिकित्सा करनी है। आप अगर पहले से ही पेशेंट को ये बता करके ट्रीटमेंट करेंगे कि ये वायरल फीवर है और ये 3 दिन लेगा ही लेगा या ये 5 दिन लेगा ही लेगा, और आपको पेशेंस रखना है, तब आपका नाम होगा, आपकी ख्याति होगी, या पेशेंट आप पे विश्वास करेगा और आपकी सफलता इस पे डिपेंड करती है। तो ये जो एक प्रिडिक्शन करना है कि आप कितने दिन में ठीक होंगे या ये रोग कितने समय लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो साध्य साध्यता में जो हमारे आचार्य बताते हैं उसमें 2 तरह से उन्होंने कैटेगराइज किया है। एक तो साध्य व्याधियां होती है और असाध्य व्याधियां होती है। साध्य व्याधियां उसको फिर से उन्होंने 2 टाइप का बताया है, सुख साध्य और कष्ट साध्य। साध्य मतलब जो कि क्यूरेबल है, जो कि ट्रीटेबल है, जिनको हम चिकित्सा देकर के ठीक कर सकते हैं। असाध्य है जिनको हम ट्रीट नहीं कर सकते, जो क्यूरेबल नहीं है। अब इसमें भी 2 कैटेगरीज आ जाती है, याप्य और अनुपक्रम या प्रत्याख्य जिसको बोला है। अनुपक्रम तो बिल्कुल ही डेड है कि इसमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें क्योर होना ही नहीं है। याप्य वो कैटेगरी है कि जहां पे हमें ये पता है कि रोग पूरी तरह से ठीक नहीं होने वाला है, समूल नाश नहीं होने वाला है रोग का, ये क्यूरेबल नहीं है, लेकिन क्यूरेबल नहीं है लेकिन ट्रीटेबल है, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, इसमें हम चिकित्सा दे सकते हैं, लेकिन इसको हम पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते। अब सबसे पहले हम देखते हैं सुख साध्य व्याधि। सुख साध्य क्या है? तो इसमें जो व्याधि अल्प प्रयासों से ही रोगी को बिना अधिक कष्ट दिए सरलता से सुखपूर्वक ठीक हो जाती है। बहुत ही सिंपल टाइप की व्याधियां होती हैं और जिसमें न रोगी को ज्यादा परेशानी होती है, न चिकित्सक को ज्यादा परेशानी होती है, और अल्प चिकित्सा देकर के मृदु स्वरूप की औषधियों का प्रयोग करके जो है हम इनको ठीक कर सकते हैं। सामान्यतः संशमन औषधियों से ठीक हो जाते हैं या कुछ पथ्य से भी ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह की जो व्याधियां होती है वो सुख साध्य होती है। इसमें शस्त्र, क्षार, अग्नि, कर्म, इस तरह की चिकित्सा प्रणाली के यूज करने की जरूरत नहीं होती। तो अतिसार, अजीर्ण आदि इस तरह की जो व्याधियां हैं ये सुख साध्य कैटेगरी की आती है। जितनी भी साध्य व्याधि हैं, चाहे वो सुख साध्य हो या कष्ट साध्य हो, उनको फिर से इन 3 में डिवाइड किया गया है, अल्पोपाय साध्य, मध्यमोपाय साध्य और उत्कृष्टोपाय साध्य। ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति का एज क्या है, व्यक्ति के दोष कितने प्रबल है, व्यक्ति का अपना बल कितना है, तो और व्याधि बल कैसा है, तो और स्टेजेस क्या है व्याधि की, तो उस अकॉर्डिंग जो है हम अल्प उपाय से, मध्यम उपाय से या और ज्यादा उत्कृष्ट उपाय अपना करके जो है उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब सुख साध्यता के लक्षण बताएं। ये जो पैरामीटर्स हैं, आजकल जो हम एसओपीज बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर्स हम बोलते हैं, या जो एसओपीज बनाते हैं हर चीज के, या कुछ पैरामीटर्स तय करते हैं, तो ये बड़े अच्छे पैरामीटर्स जो है हमारे आचार्यों ने हमें व्याधि के टाइप्स देखने के लिए या व्याधि की प्रोग्नोसिस डिसाइड करने के लिए जो है हमें बड़े अच्छे पैरामीटर्स दिए गए। सबसे पहला पैरामीटर बोलते हैं सुख साध्यता के लिए कि हेतवः पूर्व रूपाणी रूपाणी अल्पानी यस्य च। हेतु पूर्व रूप और रूप जिनके अल्प हों, जिन जिन रोगों के कारण, जिन रोगों के पूर्व रूप, जितने शास्त्रों में पूर्व रूप बताए हैं,
या जितने रूप हमें बताए गए हैं, अगर वो अल्प संख्या में अल्प हो या बल में अल्प हो, अगर उनका बल कम है, मृदु स्वरूप में अगर व्याधि उत्पन्न हुई है, कारण भी अल्प स्वरूप के हो, तो ऐसी व्याधियां जो है सुख साध्य कैटेगरी की आती है। अभी हम देख रहे हैं कोरोना काल चल रहा है, कोरोना के भी जितने केसेस हैं उसमें भी ये चीजें बिल्कुल फिट बैठती हैं कि वायरल लोड जहाँ पे कम है, जहाँ पे लक्षण कम है, बिल्कुल अल्प लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, वो क्यूरेबल है, वो बहुत ही सुख साध्य कैटेगरी में आते हैं। न च तुल्य गुणो दुष्यो न दोषः प्रकृतिर्भवे। दुष्य जो है वो, जो भी दुष्य दूषित हो रहा है वो दोष के समान न हो, और प्रकृति भी जो है व्यक्ति की वो उस दोष की ना हो जिस दोष से रोग उत्पन्न हुआ है। तो अगर ऐसा नहीं है, अपोजिट है, तो भी व्याधि सुख साध्य। गुणोतुल्य जो काल है, जिस ऋतु में व्याधि उत्पन्न हो रही है वो भी सेम ना हो। जैसे अगर वर्षा ऋतु है और उसमें वातिक व्याधि हो रही है तो वो कष्ट साध्य होगी, लेकिन यदि वही अपोजिट है, शरद ऋतु में वातिक व्याधि हो रही है या वसंत ऋतु में वातिक व्याधि हो रही है तो वो साध्य रहेगा। न देशो दुरुपक्रम। देश से यहाँ पे हम दो तरह से देश ले सकते हैं। एक देश जो कि जहां हम रहते हैं, जो क्षेत्र हमारा है, आनुक देश, जांगल देश, तो इस तरह से अगर आनुक देश है और कफज व्याधि हो रही है तो वो कष्ट साध्य कैटेगरी में जाएगी। लेकिन अगर अपोजिट है, आनुक देश है और अगर वातिक व्याधि हो रही है तो वो ज्यादा इजीली ट्रीटेबल है। ऐसे ही शारीर देश को भी लिया गया है कि अगर शरीर का ऐसा पार्ट अफेक्टेड है, जैसे मर्म संधि, इस तरह के जो अंग बताए गए हैं, वहां पे अगर कोई व्याधि होती है तो वो कष्ट साध्य कैटेगरी में चली जाती है। लेकिन अगर नॉर्मल स्थानों पे अगर व्याधि हो रही है तो या चिकित्सा करना जहाँ पे इजी हो, ऐसे स्थानों पर अगर कोई रोग हो रहा है तो वो भी जो है साध्य कैटेगरी में आते हैं, सुख साध्य कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद में गति ही एका बोला गया कि अगर रोग की गति जो है, त्रिविध रोग मार्ग बताए गए हैं, बाह्य, आभ्यंतर और मध्यम। तो मतलब कोष्ठ, शाखा, परमास्थि संधि और बाह्य जो है मार्ग। तो अगर इनमें से किसी एक ही मार्ग में अगर रोग है तो वहां पर भी जो है सुख साध्य बताए गए हैं। फिर बताया है नवत्व। ये हम देखते हैं सभी जगह हम देखते आ रहे हैं, मैक्सिमम डिसीजेस जो है अगर अभी अभी हुई है, तुरंत हुई है, नहीं है, तो वो सुख साध्यता की कैटेगरी में आती है। लेकिन जब रोग पुराना हो जाता है, कुछ समय हो जाते हैं, निरंतर बना रहता है, जीर्ण हो जाता है, तो वो कष्ट साध्य या असाध्य की कैटेगरी में चला जाता है। तो कोई भी रोग यदि नया हो, अभी अभी उत्पन्न हुआ है, तो हम उसको जल्दी ठीक कर सकते हैं। रोगस्य उपद्रवो न च, और जिसमें कोई भी उपद्रव उत्पन्न न हो, कोई भी कॉम्प्लिकेशन से भी उत्पन्न न हुए हो, तो वो भी सुख साध्य हो जाते रहते हैं। दोषः च एकम, और एक दोष जो, अगर केवल एक ही दोष वहां पे अगर है तो भी वो सुख साध्य है। समुत्पत्तो देह सर्व औषध क्षम, और जो शरीर है वो सभी औषधियों को सहन करने में समर्थ है। तो जितनी भी औषधि का अगर हमें प्रयोग करना है, किसी भी तरह की, कोई तीक्ष्ण उष्ण या जैसे भी औषधि, तो उसको सहन करने में यदि शरीर सक्षम है तो ऐसे सभी व्याधियां जो है वो सुख साध्य श्रेणी में आएगी। और चतुष्पादोपपत्ति च, अगर चतुष्पाद जो बताए गए हैं वो भी अपने संपूर्ण गुणों से युक्त अगर है, चारों चतुष्पाद जो है, जो चारों चतुष्पादों के चार चार गुण, ऐसे जो 16 गुण है वो सारे अगर संपन्न है तो भी जो है व्याधि सुख साध्य बताएगी। ये तो आचार्य चरक ने बताया। इसके अलावा कुछ अष्टांग संग्रह में कुछ और भी जो है अलग से सुख साध्यता के बताए हैं। उसमें कुछ चीजें जैसे बोला है कि पुरुष में होने वाली व्याधियां सुख साध्य है, या फिर शरीर के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से उन्होंने कुछ और भी डिफरेंट जो है चीजें बताई हैं। लेकिन सुश्रुत ने भी जो है वर्ण चिकित्सा में जो है वर्ण को लेकर के साध्य साध्यता बताई है। तो उस हिसाब से उन्होंने कि कौन से प्लेस में होना चाहिए, कितना है, तो उस हिसाब से भी साध्य साध्यता के विषय में बताया है। इसमें कुछ अपवाद है सुख साध्य के, जो हमने पैरामीटर्स तय किए हैं उन पैरामीटर्स में कुछ एक एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है। तो वो अपवाद यहाँ पे बताए हैं। न च काल गुण हो तुल्यों का अपवाद। काल
जैसे बताया है कि जो व्याधि उत्पन्न करने वाला दोष है वो, और जो ऋतु या जो काल चल रहा है अगर वो समान है तो व्याधि कष्ट साध्य होगी, ऐसे बोला है। लेकिन यहाँ पे प्राकृतः सुख साध्य तो वसंत शरद उद्भव, ज्वर के प्रकरण में बताया है कि ज्वर में बताया है कि अगर वसंत ऋतु में उत्पन्न होने वाला कफत ज्वर या शरद ऋतु में उत्पन्न होने वाला पैतृक ज्वर जो है वो सुख साध्य बताया गया है। तो ये एक काल का अपवाद है। उसके बाद एक दुष्य का अपवाद है, न च तुल्य गुण दुष्य, जो बताया गया है कि दोष और दुष्य समान नहीं होना चाहिए। तो उसमें दुष्य के अपवाद में बताया कि जो कफच प्रमेह है वो, उसमें वो साध्य इसलिए बताया गया है क्योंकि वहां पे दोष और दुष्य समान है, दोनों की एक साथ चिकित्सा हो जाएगी। तो ऐसे कफच प्रमेह ये इसका अपवाद है। और नवत्वम का अपवाद बताया है रक्तगुल्म, कि हम वैसे बोलते हैं कि जो भी रोग पुराने हो जाते हैं, जीर्ण हो जाते हैं, वो असाध्य या कष्ट साध्य कैटेगरी में जाते हैं, रोगों का नया होना चाहिए। लेकिन रक्तगुल्म इसका अपवाद है। उसमें बताया है कि रक्तगुल्म में 10 माह होने के बाद में जो है उसको साध्य बोला गया है, या 10 माह के बाद उसकी चिकित्सा करने के लिए बोला गया है। तो ये सारे जो है अपवाद जो सुख साध्य के जो लक्षण हैं उसके हैं। ज्वरे तुल्य दोषत्वम, प्रमेहे तुल्य दुष्यता, रक्तगुल्मे पुराणत्वम, सुख साध्य से लक्षण जो है इस तरह से बताया गया है। इसी के साथ अपवाद में ही अगर हम पक्षाघात को देखें तो पक्षाघात में भी जो दोष के बारे में बोला है कि एक दोषज रोग जो होंगे वो सुख साध्य होते हैं। तो पक्षाघात में एक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है कि वहां पे बताया है शुद्ध वातहतम पक्षम कृच्छ साध्यतमम विदुः साध्यम अन्येन संसृष्टम असाध्यम क्षयहेतुकम्। यहाँ पे उन्होंने जो द्वंद्वज है उसको सुख साध्य बोला है, जबकि शुद्ध वातिक एक दोषज, शुद्ध वातिक एक दोषज है लेकिन कष्ट साध्य, क्योंकि बात बात अगर ज्यादा है, बड़ा हुआ है, उसके जो वृक्ष आदि गुण है उससे पक्षाघात और ज्यादा बढ़ता है। तो इसीलिए केवल वातिक है तो कष्ट साध्य है। लेकिन अगर पित्त और कफ से संश्लिष्ट हो जाता है या वहां पे उनका भी संसर्ग है पित्त या कफ का, तो वो वात के बल को कम कर देंगे, इसलिए वो सुख साध्यता की कैटेगरी में चला जाता है। तो यहाँ पे एक ये थोड़ा सा जो है सिद्धांत का अपवाद है कि यहाँ पे द्वंद्व जो है वो साध्य। नेक्स्ट आते हैं हम कष्ट साध्य व्याधि। कष्ट साध्य व्याधियां भी ट्रीटेबल तो है ही, लेकिन थोड़ा सा इसमें विलंब होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है ठीक होने में, थोड़ी तकलीफ होती है पेशेंट को। तो कठिनाई से ठीक होते हैं, प्रयत्न पूर्वक ठीक होते हैं, लेकिन प्राणघातक नहीं है। इसमें व्यक्ति क्यूरेबल है, ट्रीटेबल है, लेकिन प्राणघातक नहीं है। और शस्त्र क्षार और अग्निकर्म द्वारा साध्य है। ऐसी व्याधियां जिसमें थोड़ा सा पेशेंट को तकलीफ हो, एफर्ट्स ज्यादा लेने पड़ते हैं, हमें संशोधन क्रिया करनी है या कोई शस्त्र क्रिया करनी है या फिर क्षार कर्म अग्निकर्म आदि इस तरह के कोई कर्म अगर हमें करने हैं, तो वो व्याधियां जैसे अर्श भगंदर आदि व्याधियां कष्ट भी देती है पेशेंट को, और ट्रीटमेंट के भी जो साधन है, जो प्रक्रियाएं हैं वो भी थोड़ी सी कठिन होती है, इसलिए इनको कष्ट साध्य बोला गया है। इनके भी कुछ पैरामीटर्स बताए हैं, जैसे कि निमित्त पूर्व रूपाणाम मध्य में बल। सुख साध्य में जो हेतु पूर्व रूप को अल्प बल वाला बोला था कि अगर वो अल्प बल में है तो सुख साध्य होगा, तो यहाँ पे निमित्त पूर्व रूप और रूप जो हेतु पूर्व रूप जो है अगर वो मध्यम बल वाले हैं तो व्याधि कष्ट साध्य होगी। काल प्रकृति दुष्याणाम सामान्य अन्यतमस्य च, काल प्रकृति और दुष्य इनमें से कोई एक समान, वहां पे हमने बोला था कि बिल्कुल डिफरेंट हो, अपोजिट हो। यहाँ पे अगर इन तीनों में से कोई एक चीज रोग उत्पन्न करने वाले दोष के समान हो तो भी कष्ट साध्य होगा। फिर बताया है गर्भिणी वृद्ध बाला, जो भी व्याधियां किसी गर्भिणी में हो रही है, वृद्ध में हो रही है या बालक, कोई एक व्याधि अगर हम, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना एक युवा व्यक्ति के लिए सुख साध्य है, लेकिन वही एक गर्भिणी के लिए, वही एक वृद्ध के लिए जो है वो कष्ट साध्य है। तो एक ही व्याधि विभिन्न लोगों में उसकी साध्य साध्यता जो है डिफरेंट हो सकती है। तो अगर सुख साध्य वाली ही व्याधि अगर किसी गर्भिणी को हो जाती है, किसी वृद्ध को हो जाती है या किसी बालक को हो जाती है, तो वो डिपेंड करता है, वो कष्ट साध्य कैटेगरी में जा सकती है। नाति उपद्रव पीड़ित, बहुत ज्यादा उपद्रव उत्पन्न न हुए हो, उपद्रव हो चुके हो लेकिन ज्यादा नहीं,
शस्त्रशार अग्निकृत्या, जहाँ पे शार या अग्निकर्म का की चिकित्सा को जो है अगर हमें ऑप्ट करना है तो ऐसे डिसीजेस। अनवम, जो नया न हो, अब बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं वो, लेकिन जो नया न हो ऐसे डिसीज। यूजुअली कई जगह जो है शास्त्रों में 1 साल की अवधि बोली गई है पुराणता के लिए, कि अगर 1 साल के बाद कोई डिसीज होती, मतलब अगर वो 1 साल तक बनी रहती है तो वो जीर्ण अवस्था में चली जाती है और फिर हम उसको जो है जीर्ण बोलेंगे। तो यूजुअली जो एक पैरामीटर तय किया गया है 1 साल का, क्योंकि उसके पीछे उनका लॉजिक ये है कि 1 साल में सभी ऋतु है तो कई दोष जो है ऋतु अनुसार भी उनका संशमन हो जाता है। तो अगर वो ऋतु आ गई और फिर भी उस दोष का शमन नहीं हुआ, उस रोग का शमन नहीं हुआ, तो इसका मतलब अब वो व्याधि जो है वो इनक्यूरेबल में चली जाएगी। तो अनवम हो, नई ना हो, कृच्छ देशजम, फिर से यहाँ पे किसी कठिन देश में फिर से यहाँ पे कि अगर शरीर का ऐसा अंग की जो वाइटल ऑर्गन्स है, जो मर्म प्रदेश बताए गए हैं या संधि अस्थि मर्म, इस तरह के जो भी प्रदेश हैं वो सभी जो है प्रदेश, अगर ऐसे जगहों की व्याधियां हो, हार्ट डिसीजेस है, ब्रेन की डिसऑर्डर्स है, लीवर किडनी, इस तरह के वाइटल ऑर्गन्स के भी जो डिसऑर्डर्स होंगे वो सब कष्ट साध्य कैटेगरी में जाएंगे। विद्यात एक प्रथम रोग, किसी एक रोग मार्ग में है लेकिन नाति पूर्ण चतुष्पादम, लेकिन चतुष्पाद की पूर्णता नहीं। अगर चतुष्पाद पूरे ठीक से नहीं है और एक मार्ग में है, या फिर द्विपथम नाति कालम, 2 पथ में है और नया है लेकिन द्विमार्ग में है, तो ऐसे रोग भी कष्ट साध्य होंगे। रोग तो नया है, अभी अभी का हुआ है, लेकिन रोग मार्ग उसके जो है वो 2 है और द्विदोषजम, जितने भी द्वंद्वज विकार है वो सभी कष्ट साध्य कैटेगरी में लिए गए। उसके बाद में है याप्य व्याधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय में हमें जितनी भी व्याधियां मिलती हैं, मैक्सिमम जितनी व्याधियां हम ट्रीट कर रहे हैं, जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से रिलेटेड है या और भी जितने हमारे टॉप लिस्ट में जितनी व्याधियां हैं, वो मोस्टली व्याधियां याप्य कैटेगरी। ये जीवन भर ठीक नहीं होने वाली। ये व्याधि एक बार होगी, जैसे डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस एक बार डिटेक्ट हो गया कि जिसको अगर तमक श्वास है, अस्थमा है, तो जैसे भी कारण आएगा वो रोग जो है अपने बल में आएगा, उग्र हो जाएगा। लेकिन जब तक आप चिकित्सा करेंगे, जब तक आप पथ्यापथ्य का सेवन करेंगे, जब तक ऋतु आपके अनुकूल है, जब तक बाकी सारी चीजें आपके अनुकूल हैं, तब तक आप उस व्याधि को जो है एक कंट्रोल में रख सकते हैं। जो भी उससे उत्पन्न होने वाली वेदनाएं हैं या जो भी कंप्लेंट्स हैं या जो भी चीजें हैं, उसको आप जो है एक कंट्रोल में रख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं हम इनको, लेकिन इनको हम पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते। तो इसमें आचार्यों ने बताया कि रोगी अपनी पूर्ण आयु जीता है, जो उसका लाइफ स्पैन है, चूंकि उसकी आयु शेष है। व्यक्ति का जो लाइफ स्पैन है वो तो उसका पूरा है, उसने जितना जीना है उतना उसने जीना है, लेकिन उसने उस रोग के साथ जीना, उस रोग का समूल नाश नहीं होने वाला। अभी जितने नए नए ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं या और भी जेनेटिक, ये सब ठीक नहीं होने वाले, ये लाइफ लॉन्ग रहने वाले, इनकी कोई पूरी तरह से ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन जो भी मेडिकेशन हम देते हैं वो उसको मैनेज करने के लिए देते हैं, उसको हम एक हद तक जो है उसको हम और ज्यादा अगली स्टेज में ना जाए, कॉम्प्लिकेशंस डेवलप ना हो, या पेशेंट जो है अपना डे टू डे वर्क प्रॉपरली करता रहे। तो इस तरह से आम बात हो गई रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये इस तरह की जितनी भी हाइपरटेंशन है, ये सारी व्याधियां, इनको हम प्रॉपर मेडिकेशन से, पथ्यापथ्य से, अपना एक लाइफस्टाइल चेंज करके या प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर के हम इनको जो है उग्र होने से रोक सकते हैं, या इससे और ज्यादा शरीर को नुकसान न हो इसका हम ध्यान रख सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से क्योर होने वाले नहीं होते हैं जितने भी याप्य कैटेगरी के डिसीजेस होते हैं। तो इसमें निरंतर पथ्य सेवन, औषधि प्रयोग जो है, इनसे रोगी को आराम मिलता है। लेकिन जैसे ही पथ्य सेवन करेगा या रोग के अनुकूल कारण उत्पन्न होंगे, तो वैसे ही जो है ये रोग पड़ जाते हैं। तो ये आते हैं याप्य। याप्य व्याधियों के लिए भी जो पैरामीटर्स बताए हैं उसमें बताया है कि शेषत्वाद आयुषो पथ्य सेवया
लब्धवा अल्प सुखम, पथ्य सेवन से अल्प सुख प्राप्त होता है। अल्पेन हेतुना आशु प्रवर्तक, पथ्य सेवन करेंगे तो आराम मिलेगा व्याधि में, औषधि लेते रहेंगे तो आराम मिलेगा व्याधि में। लेकिन जैसे ही हम कोई भी अपथ्य करते हैं या कोई भी कारण, एग्रावेटिंग फैक्टर अगर कोई भी आ जाता है, जैसे ही एग्रावेटिंग फैक्टर, जैसे तमक श्वास है, उसमें जैसे ही बादल छाएंगे, बारिश होगी या कुछ दही खा लिया या कोई ऐसी चीज खा ली, तो तुरंत जो है उसको, या एलर्जिक अस्थमा है तो अगर वो एलर्जन का एक्सपोज हो गया अगर पेशेंट, तो तुरंत ही जो है उसको अटैक आएगा। तो अल्पेन हेतु ना आशु प्रवर्तक, अल्प हेतु के संपर्क में आते ही जो है तुरंत जो है वो उग्र हो जाएगा या उसका फिर से प्रादुर्भाव हो जाएगा। गंभीरम बहुधातु, ऐसी जो व्याधियां होती है ये गंभीर धातुओं में होती है और बहुत धातुओं में। हमारे यहाँ ये भी एक पैरामीटर है कि अगर केवल एक या दो ही धातुएं हैं, अगर जैसे ऊपर ऊपर की धातुएं रस रक्त आदि में है तो सुखसाते हैं, अंदर अंदर जैसे जैसे गंभीर धातुओं में व्याधि का प्रवेश होता जाएगा या दोषों का प्रवेश होता जाएगा, वैसे वैसे जो है रोग वो असाध्य और मतलब कष्ट साध्य या फिर इस तरह की कैटेगरी में जाएंगे। तो अगर बहुत अंदर की धातुओं में है, अस्थि मज्जा शुक्र आदि धातुओं में है, या बहुत सारी धातुओं को अगर इन्वॉल्व किया हुआ है, तो वहां पे भी जो है ये व्याधियां याप्य कैटेगरी में जाएगी। ऐसे ही मर्म संधि इनमें अगर है तो भी याप्य है। नित्यानुशायनम रोगम, और हमेशा या बार बार जो है प्रादुर्भाव हो रहा है, बार बार पलट पलट के डिसीजेस, ये जो याप्य कैटेगरी की डिसीजेस है, जिसे मैंने बताया कि पथ्य करते हुए औषधि लेते हुए ये ठीक रहती है, लेकिन इनके जो है अटैक्स भी होते हैं, ये बार बार आती है। तो जैसे माइग्रेन का अटैक होता है, तमक श्वास का अटैक होता है, या अपस्मार है, इनके अटैक्स होते हैं, तो ये निरंतर बने रहते हैं या इनके बार बार जो है इस तरह के आक्रमण होते हैं। दीर्घ कालम अवस्थितम, ये दीर्घ काल तक बने रहते हैं। और द्विदोषजन, दो 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 दोषों का जो है इसमें प्रादुर्भाव होता है। लास्ट जो है, नेक्स्ट जो आता है ये है अनुपक्रम या प्रत्याख्य, असाध्य व्याधि, नॉन क्यूरेबल, इनक्यूरेबल, ये इस तरह की जो ये डिसीजेस है, इसमें सबसे लास्ट जो आता है टर्मिनल पॉइंट जो है वो प्रत्याख्येय व्याधि का, जहाँ पे आपकी कोई भी चिकित्सा कारगर नहीं होती, चाहे आपकी कितनी भी संशमन, संशोधन, शस्त्र कर्म, अग्निकर्म, शार कर्म, भूत विद्या, कोई मतलब किसी भी तरह से अगर किसी व्यक्ति में कोई लाभ नहीं होना है, और अगर उसकी आयु जो है, मतलब ये एक तरह से अरिष्ट लक्षण उत्पन्न अगर हो गए हैं किसी व्यक्ति में, और कोई व्याधि का टर्मिनल स्टेज अगर आ गई है, तो वो असाध्य कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हमारा साध्य साध्यता के विषय में है वो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि एक तो ये पूर्णतः असाध्य है, किसी भी तरह की कोई चिकित्सा से इसमें लाभ नहीं होने वाला, रोगी के जीवित रहने की संभावना बहुत कम है, और अचिकित्स्य है ये। अब यहाँ पे अगर हम ऐसे कंडीशन में ऐसे केसेस को, ऐसे पेशेंट्स को अगर हम ये बोल के ट्रीट करेंगे कि हम ट्रीट कर सकते हैं, या आयुर्वेद में तो सब चीजों का इलाज है, हम हर चीज को ट्रीट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा हम लोग क्या बोलेंगे, अति उत्साह में जो है कई लोग कोई फेक अपने कमेंट्स दे देते हैं कि हम कैंसर ठीक कर देंगे, हम ये ठीक कर देंगे, हम वो ठीक कर देंगे। ठीक, जब हमारे शास्त्र ने आयुर्वेद में इतना बड़ा चैप्टर साध्य साध्यता के विषय में दिया हुआ है, और कैटेगराइज किया है रोगों को कि कौन सी व्याधियां सुख साध्य है, कौन सी व्याधियां कष्ट साध्य है, कौन सी याप्य है और कौन सी प्रत्याख्य है। प्रत्याख्य में क्लियर कट आचार्यों ने बताया है कि जो व्याधियां ठीक नहीं होने वाली है उसको आपको, पेशेंट अगर ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार है या उसके परिजन, उसके जो रिलेटिव्स हैं वो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप ट्रीट करो, क्योंकि यूजुअली हम कोई भी पेशेंट को लास्ट उसकी सांस तक जो है ट्रीट करते हैं। कोई भी घर वाला, कोई भी पेशेंट के रिलेटिव किसी को भी मरने के लिए ऐसे ही नहीं छोड़ देते, कि अगर हमने बोल भी दिया कि ये व्याधि असाध्य है, इसकी चिकित्सा नहीं हो सकती, तब भी कोई भी उसको छोड़ नहीं देता है। बिल्कुल हम लास्ट मोमेंट तक ट्राई जरूर करते रहते हैं, उसके लिए हम कोशिश करते रहते हैं कि
अगर पेशेंट की लाइफ है और भाग्यवश या दैववश अगर वो बच जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। लेकिन अगर हमें अपयश का भागी नहीं बनना है और हमें निंदा का पात्र नहीं बनना है, तो हमें ये प्रिडिक्शन कर देना चाहिए कि ये व्याधि ठीक होने वाली तो नहीं है, बचने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं, हम ये चिकित्सा दे करके देखते हैं, हम ये करके देखते हैं, इससे लाभ हुआ तो ठीक है, नहीं तो अभी जैसे कोरोना में कोई ट्रीटमेंट नहीं थी, किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन हमने बहुत सारे ट्रायल्स किए, कई एंटीवायरल ड्रग्स दे रहे हैं, तो कई एंटी मलेरियल ड्रग्स दे रहे हैं, तो कुछ प्लाज्मा थेरेपी कर रहे हैं, तो हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स किए, और उसके बाद में हमें कहीं पे हमें यश मिला, कहीं पे हमें यश नहीं भी मिला। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से भी बहुत जगह हमें, अब ट्रीटमेंट से फायदा हुआ किस चीज से हुआ, लेकिन हमने इम्यूनिटी बूस्टर्स करके जो है अपनी दवाइयों को दिया, उससे लोगों की इम्यूनिटी बढ़ी, उससे रोग से लड़ने में की क्षमता जो है लोगों की बढ़ी, और उससे हमने बहुत हद तक जो है सफलता प्राप्त की। तो लेकिन मेन मोटो क्या है कि चिकित्सा के बाद में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी वो डिफरेंट चीज है, लेकिन हम पहले से ही अपने आप को, पहले से ही अगर हम बहुत ज्यादा बड़े बोल बोल देंगे कि हम ये ठीक कर देंगे और वो नहीं हुआ, तो उससे न केवल आपकी बदनामी होती है, आपकी पैथी की भी बदनामी होती है। तो जिन चीजों का हमें नॉलेज नहीं है, या जो व्याधियां शास्त्र में ऑलरेडी असाध्य बताई गई है, तो उसके बारे में बोलते समय या चिकित्सा करते समय हमें ये जो बताया है, ये लास्ट में जो उन्होंने आचार्यों ने बोला है कि इसके बारे में बता करके चिकित्सा करें, प्रत्याख्याय करके, या उनको बोल करके, उनको मेंटली प्रिपेयर करके कि ये ठीक होने वाली नहीं है, लेकिन हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं या हम ट्राई करेंगे। तो इस तरह से जो है अगर हम करते हैं तो उसमें हमारे ऊपर ज्यादा दोष नहीं आता है। तो ये प्रत्याख्याय के बारे में जो है उसके कुछ पैरामीटर्स बताए हैं कि कौन सी व्याधियां हैं जो प्रत्याख्याय श्रेणी में आएगी। तो तद्वत प्रत्याख्यायम त्रिदोषजम, जितने भी लक्षण या जितने भी पैरामीटर्स व्याप्य व्याधियों के बताए गए थे, उन्हीं पैरामीटर्स के साथ यदि त्रिदोषज, अगर तीनों दोष इन्वॉल्व है, तो वो सारी प्रत्याख्याय कोटि में आएगी। क्रियापथम अतिक्रांत, कोई भी क्रिया, कोई भी चिकित्सा जहाँ पे कारगर सिद्ध नहीं हो रही है, नहीं होगी, ऐसे सारे सर्व मार्गानुसारिणम, तीनों रोग मार्ग में जो व्याधि व्याप्त हो चुकी है। औत्सुक्य, औत्सुक्य ये एक उत्सुकता, रोग के प्रति उत्सुकता, ये बेचैनी या इरिटेशन कि क्या होगा क्या होगा, बार बार घर वाले, पेशेंट या उसके रिलेटिव्स बार बार क्या होगा, बचेगा या नहीं, बचेगा या नहीं, ठीक हो तो जाएगा, या पेशेंट को भी बार बार ये लगता है। तो ये जो एक है एंजाइटी, या जो औत्सुक्य है, जो हर्षातिरेक भी बोला गया है वहां पे, तो इस तरह की अगर कोई चीज उत्पन्न होती है तो ये भी अनुपक्रम व्याधियों के अंतर्गत है। अरति, किसी भी काम में मन नहीं लगता है। सम्मोह कारक, समूह कारक में दोनों चीजें हैं कि अगर पेशेंट कोमेटोज हो रहा है, या सम्मोहन में जा रहा है, या फिर जो भी इंद्रियों के उसके विषय है वो प्रॉपरली ग्रहण नहीं कर पा रहा है। इंद्रिय नाशन भी बोला है कि इंद्रियां जो है अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती है, और इंद्रियों का जो है नाश हो जाता है। तो ऐसे जितने भी, तो ये टर्मिनल जो या क्रिटिकल इलनेस में ये सारे लक्षण हमको मिलते हैं। दुर्बलस्य सुसमृद्धम व्याधि, और किसी दुर्बल व्यक्ति में अगर व्याधि बल बहुत ज्यादा है तो, और अरिष्ट जिनमें उत्पन्न हो गए हैं, तो ऐसे सारी जो है व्याधियां वो सब प्रत्याख्याय या अनुपक्रम श्रेणी में आती है। इन्हीं को, यही जो चीजें हैं, इन्हीं को बेस बना के अब आचार्यों ने साध्या साध्य का एक ये जनरल प्रिंसिपल तो बना दिया, जनरल सिद्धांत बना दिए, लेकिन हर व्याधि में, हर व्याधि के साथ जो है उसके साध्या साध्यता के लक्षण भी बताए हैं। कहीं दोषानुसार बताए हैं, कहीं उसके कालानुसार, कहीं उसके लक्षणानुसार। तो उसी को थोड़ा सा मैंने ये कैटेगराइज किया है कि जैसे कुछ व्याधियां जो है वो तो स्वभाव से ही साध्य या असाध्य होती है, वो अलग ही। जैसे हमने देखे महागत जो है, महागत का एक वो जो कैटेगरी बनाई है, वो जो ग्रुप बनाया है, वो महागत सारे कष्ट साध्य दुष्चिकित्स से बोला गया है।
तो वो उनकी कैटेगरी ही कष्ट साध्य है, उसको आप बोल ही नहीं सकते कि ये सुख साध्य है या हम इनको ठीक कर देंगे, वो ठीक ही कठिनता से होने वाले रोग हैं। तो ऐसे बहुत सारे व्याधियां हैं कि जो बड़ी ही कठिनता से ठीक होने वाली है, तो वो असाध्य व्याधि में। सुख साध्य व्याधियां हैं, जैसे बताया मैंने, ज्वर है, प्रतिशय है, ये अपने आप जो है जल्दी ठीक होने वाली व्याधियां हैं। तो ये ऑलरेडी व्याधियों में ही व्याधियां अपने आप में सुख साध्य, कष्ट साध्य, याप्य या प्रत्याख्य कैटेगरी की। लेकिन कुछ व्याधियां जो एक ही रोग की साध्य साध्यता की विभिन्न अवस्थाएं, कोई रोग शुरू में, स्टार्टिंग में वो साध्य होता है, लेकिन कुछ समय बाद जाकर के अगर उसको हमने प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया या पथ्य पद्धति का पालन ठीक से नहीं किया, तो वो साध्य व्याधि कष्ट साध्य हो सकती है। कष्ट साध्य के बाद वो याप्य कैटेगरी में जा सकती है, या याप्य के बाद वो प्रत्याख्य में जा सकती है। तो एक ही व्याधि के डिफरेंट स्टेजेस हो सकते हैं। एक ही व्याधि में फिर हमारे आचार्यों ने जैसे बताया है कि ये जैसे कफज प्रमेह जो है वो साध्य बताया है, पित्तज प्रमेय याप्य बताया है, वातज प्रमेय असाध्य बताया है, दोषानुसार साध्य साध्यता बताई है, या लक्षणानुसार। तो इसको हम देखते हैं कैटेगरी। जैसे दोषानुसार तो मैंने बताया कि एक दोष साध्य बताई है, द्वंद्वज कष्ट साध्य या याप्य, और सन्निपातज असाध्य बताया है। उसके बाद अवस्थानुसार, जैसे बाल्य, युवा या वृद्धावस्था में व्याधियों का बताया है कि कोई एक ही व्याधि अगर बालक में होती है तो साध्य है। जैसे गृहिणी रोग बताया है कि बालकों में साध्य है, युवाओं में कष्ट साध्य है, और वृद्धों में असाध्य है। तो इस तरह से अवस्थानुसार भी साध्य साध्यता है। ऐसे ही गर्भिणी और सद्य प्रसूता में, जैसे पक्षाघात वगैरह बताया कि अगर इनमें होता है तो ये कष्ट साध्य हो जाएगी। अन्य रोगग्रस्त यदि रोग है उसके साथ में, किसी एक डिसीज के साथ और कोई डिसीज उसके साथ है, तो भी वो कष्ट साध्य हो जाएगा। क्षीण में होने वाले, दुर्बल में होने वाले, उपद्रव युक्त जो है वो सब। तो इस अलग अलग एक ही कालावधि अनुसार की जो है साध्य साध्यता निकाली है। जैसे बताया है कि वातिक सन्निपातिक ज्वर के 7 दिन की कालावधि बताई है, पैतिक की 10, कफज की 12 बताई है, कि अगर इन इतने कालावधि में या तो वो ठीक हो जाएगा या और ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसे ही श्लीपद की एक वर्ष पुराना श्लीपद असाध्य बताया, 3 वर्ष पुराना अर्पित असाध्य बताया, 13 वर्ष पुराना उन्माद असाध्य बताया, 1 वर्ष पुराना मातृत्व याप्य बताया है। तो इस तरह से जो है एक पर्टिकुलर उन्होंने टाइम लिमिट भी दी हुई है कि इसके बाद व्याधि जो है असाध्य हो जाएगी। लक्षणानुसार तो बहुत सारे, हर व्याधि में लक्षणों के अनुसार, ये मैंने कुछ एक एग्जांपल्स कोट किए हैं यहाँ पे। जैसे पक्षाघात में बताया कि वेदनाओं को नष्ट हो जाना, ये असाध्यता सूचक है। अर्दित में आंखों से पलकों का न झपकना, पानी निरंतर बहते रहना, तो इस तरह का अगर अर्दित है तो वो असाध्य है। अतिसार में बताया गुदवलियों में पाक हो जाना। मल के वर्ण के विषय में बहुत सारा बताया कि किस तरह का मल होगा तो ये सब असाध्य हो जाएगा। पांडु रोग में बताया कि पांडु का न रह के अगर श्वेतता हो जाए, संपूर्ण शरीर में शोथ हो जाए, और भी लक्षण बताए हैं मैंने। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स कोट किए हैं यहाँ पे कि लक्षणानुसार ये सब साध्य साध्यता के लक्षण बताए कि कौन से रोग में क्या चीज होगी तो वो असाध्य कहलाएगा। श्लीपद में बताया जैसे कि वल्मीक के समान यदि शिखर और ग्रंथि युक्त अगर वो श्लीपद हो जाता है तो वो असाध्य हो जाता है। ऐसे विसूचिका में बताया कि नख, दंत, ओष्ठ ये श्यावर्ण के हो जाते हैं, आंखें धस जाती है, तो वो असाध्य हो जाता है। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स कोट किए, लेकिन हमारे आचार्यों ने सभी डिसीजेज में मोस्टली जो है असाध्य लक्षण बताए। अब अगर हम मॉडर्न के साथ इसको थोड़ा सा कोरिलेट करें साध्य साध्यता को, तो क्यूरेबल और इनक्यूरेबल डिसीजेस जो है वो हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। क्यूरेबल क्या है कि जो साध्य डिसीजेस है जिनका इलाज संभव है, और ट्रीटमेंट के बाद अगर वो डिसीज खत्म हो जाती है, जैसे जुकाम हुआ, हमने ट्रीटमेंट ली और जुकाम पूरी तरह से ठीक हो गया, तो वो कहलाएगी क्यूरेबल डिसीजेस। इनक्यूरेबल डिसीजेस क्या है? जो असाध्य है, लाइलाज है, अचिकित्सीय है, जिनमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। एडवांस्ड, प्रोग्रेसिव और टर्मिनल इलनेस जितने भी होते हैं ये सब इनक्यूरेबल होते हैं। इसके साथ और भी 2 टर्मिनोलॉजीज हम हाँ देखने में आती है। ट्रीटेबल, ट्रीटेबल क्या है कि जिनको हम चिकित्सा तो कर सकते हैं लेकिन जो क्यूरेबल नहीं है। तो मतलब दोनों चीजें होती है कि ट्रीटेबल और क्यूरेबल भी हो सकता है, और ट्रीटेबल और इनक्यूरेबल भी हो सकती है डिसीज। तो ये याप्य श्रेणी में हम ले सकते हैं कि जो ट्रीट तो कर पा रहे हैं लेकिन
क्योर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही परमानेंट डिसीजेस का भी एक लिस्ट जो है मॉडर्न वालों ने बना रखी है कि कुछ चीज डिसीजेस जो परमानेंट है, यही जो हम याप्पे बोलते हैं। तो ये याप्पे कैटेगरी की डिसीजेस है कि जो पूरी तरह से समूल नष्ट नहीं होने वाली है, पूरी तरह से ठीक नहीं होने वाली है, लेकिन हम चिकित्सा करेंगे या फिर पथ्य पथ्य का सेवन अगर करते रहेगा पेशेंट तो वो कंट्रोल में रहेगी। जैसे अर्थराइटिस है, सीओपीडी है, अस्थमा है, डायबिटीज है, तो ये सभी परमानेंट डिसीजेस है। अब हम साध्य साध्यता को प्रोग्नोसिस के साथ भी कोरिलेट करते हैं। अगर शब्दशः अर्थ देखिए साध्य साध्यता का, तो क्यूरेबल और इनक्यूरेबल डिसीजेस है, लेकिन इनके साथ में प्रोग्नोसिस जो मॉडर्न वाले अभी जो प्रोग्नोस्टिक उस पे जा रहे हैं, तो वो हमारे साध्य साध्यता के श्रेणी में ही उसका अंतर्भाव होता है या उसी में फिट बैठता है, क्योंकि हम एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि ये रोग का क्या होगा, इस रोग का आगे क्या होने वाला है। तो रोग साध्य होगा कि असाध्य होगा या कैसे होगा, तो ये प्रोग्नोसिस जो है हमारा, तो ये प्रोग्नोसिस जो बताया इन्होंने कि फोरकास्ट, हम उसके बारे में कोई एक अनुमान लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं उसका आउटकम क्या होगा, दोनों चीजों का आउटकम, डिसीज का भी आउटकम या ट्रीटमेंट, जो हमने ट्रीटमेंट दी उसका क्या फायदा हुआ, क्या इफेक्ट हुआ, कितने दिन में पेशेंट ठीक हो रहा है, कितने दिन में वो रिकवर ऑफ द कोर्स और डेवलपमेंट ऑफ डिसीज, वो डिसीज कितने दिन तक रहेगी, कितने दिन में बढ़ेगी, कितने दिन में घटेगी, उसका डेवलपमेंट कैसा होगा। तो ये सारी चीजें भी प्रोग्नोसिस में आती है। उसके बाद में वेदर द कंडीशन विल इम्प्रूव, या तो पेशेंट ठीक होगा, कितने दिन में ठीक होगा, कब ठीक होगा, वर्स, या तो वो वर्स हो जाएगी और ज्यादा खराब हो जाएगी कंडीशन। अलग अलग कैटेगरी के डिजीजेस हैं। कुछ कुछ कैटेगरीज में हम पेशेंट को बोलते हैं कि ये इतने दिन में ठीक हो जाएगा, अगर ये प्रॉपरली दवाई इतने दिन खाएगा तो ये ठीक हो जाएगा, या फिर वो कितने दिन बाद वो वर्स्ट हो जाएगी उसकी कंडीशन, या रिमेन स्टेबल, या फिर वो स्टेबल रहेगा, उसी अवस्था में वो स्टेबल रह सकता है। उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या रहेगी, उसके बाद में उसका क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, या वो चल फिर पाएगा या नहीं, या अपने काम कर पाएगा या नहीं, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी रहेगी, पोटेंशियल फॉर कॉम्प्लिकेशंस, उस डिसीज में उसको आगे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। तो ये सारी चीजें प्रेडिक्ट करना, लाइवलीहुड ऑफ सर्वाइवल, कितने दिन तक वो जीवित रह सकता है, कब तक जीवित रह सकता है, इस व्याधि के साथ वो कितने दिन जी सकता है, तो ये सारे जितने भी प्रेडिक्शंस हैं, ये सारे जो भी हमारा फोरकास्ट है, ये सारा प्रोग्नोसिस कहलाता है। तो ये एक स्टैटिस्टिक्स है, हमने कई पेशेंट देखे, मोस्टली ये जो प्रोग्नोसिस आजकल जो है कैंसर पेशेंट्स पे ज्यादा अप्लाई हो रहा है, या जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स होते हैं, आईसीयू में जो पेशेंट्स होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे पैरामीटर्स और बहुत सारे स्केल्स बना रखे हैं कि उसके आधार पे वो प्रिडिक्शन करते हैं कि ये ग्रेडिंग्स की हुई है कि उसके आधार पे कि ये पेशेंट अभी इस अवस्था का है, इस स्टेज का है, तो ये कितने दिन सर्वाइव कर सकता है, इसका अभी सर्वाइवल कितना है। ये जो डॉक्टर्स बताते हैं कि अभी ये 1 महीने जी सकता है, या 2 महीने या 3 महीने, तो ये जो एक प्रेडिक्शन होता है, या ये ठीक हो जाएगा, तो ये सारे जो प्रेडिक्शन हेलो डिपेंड करते हैं कि पेशेंट मतलब अगर कुछ 100 पेशेंट्स को अगर देखा और उसके बाद में उसमें से एक कंक्लूजन निकाला कि 45% पेशेंट्स जो है अगर लंग कैंसर के, वो 5 साल तक जीवित रहते हैं, तो एक ये स्टेटिस्टिक्स निकालते हैं, एक उसके बारे में अनुमान निकालते हैं कि जो लाइफ स्पैन है इतना हो सकता है किसी डिसीज का। तो लेकिन जरूरी नहीं है कि जो पेशेंट हमारे पास है वो 5 साल ही जिएगा, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो जैसे इट कैन चेंज विद टाइम ड्यू टू इन्वेंशंस ऑफ न्यूअर एंड बेटर डायग्नोस्टिक टूल्स एंड ट्रीटमेंट। अभी हमने सोच लिया, अभी किसी ने अगर बोल दिया कि इतने समय बाद ये डिसीज जो है फैटल हो जाएगी, या इतनी काल मर्यादा है, पेशेंट का लाइफ स्पैन इतना है, 1 साल या 2 साल में पेशेंट जो है उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन कई बार नई न्यू ड्रग्स आ जाते हैं, नई ट्रीटमेंट्स आ जाती है, नई डायग्नोस्टिक टूल्स आ जाते हैं, तो उससे सर्वाइवल रेट बढ़ भी सकता है। और कई बार कुछ ऐसे कैसे कारण भी आ जाते हैं कि पेशेंट जो है उससे समय से पहले भी जो है पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करता है। सो लेवल ऑफ प्रोग्नोसिस, इन्होंने भी प्रोग्नोसिस को जो है बहुत
एक्सेलेंट, गुड, फेयर, पुअर, वर्स, होपलेस, क्वेश्चनेबल, इस तरह से जो है प्रोग्नोसिस बताई है कि कौन से डिसीज में या कौन से पेशेंट में प्रोग्नोसिस डिसीज का जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा पेशेंट ठीक हो जाएगा, या पुअर प्रोग्नोसिस है, ठीक नहीं होगा, जल्दी ठीक नहीं है, या होपलेस है, इसमें कुछ भी अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, या क्वेश्चनेबल है, हमें नहीं मालूम कि इसका आगे जाके क्या होने वाला है। तो इस तरह से जो है प्रोग्नोसिस के लेवल्स किए गए हैं। फिर उन्होंने भी कुछ फैक्टर्स डाले हैं कि किन बेसिस पे जो है हम प्रोग्नोसिस करते हैं, जैसे नॉर्मल कोर्स ऑफ डायग्नोज डिसीज। नॉर्मली जैसे मैंने बताया कि स्टैटिस्टिक्स के आधार पे कि एक नॉर्मली कोई डिसीज है तो उसका कितना स्पैन रहता है, वो कब जाके ठीक होती है। जैसे पैरालिसिस है तो हम बोलते हैं हाँ, मतलब मॉडर्न वाले बोलते हैं सेल्फ लिमिटिंग है, तो वो 6 महीने साल भर बाद जाकर के वो उसमें कुछ पावर आ जाती है, या वो कुछ थोड़ा ठीक हो जाता है। या अर्दित है तो वो कितने समय बाद अपने आप ठीक हो जाता है। तो एक एक वो नॉर्मल एक वो होता है कि नॉर्मल कोर्स कितना है डिसीज का। फिर फिजिकल और मेंटल कंडीशन ऑफ पेशेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वही जो हम बल बोलते हैं कि पेशेंट का अपना बल कितना है, उसकी अपनी शारीरिक क्षमता कितनी है, तो उस पर डिपेंड करता है। फिर मानसिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनोबल पेशेंट का है तो कैंसर जैसे भी जो रोग है उनसे वो काफी अच्छे से लड़ लेता है और उसमें बहुत हद तक सफलता प्राप्त कर लेता है। तो मोस्टली कैंसर पेशेंट्स को हम देखते हैं कि मानसिक बल से वो जल्दी ज्यादा अच्छे से ठीक हो जाते हैं। तो शारीरिक और मानसिक बल पेशेंट का, उसकी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रोग्नोसिस में। फिर ट्रीटमेंट अवेलेबल, क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, दुनिया में क्या अवेलेबल है, हमारे पास क्या अवेलेबल है, और पेशेंट का पॉकेट कितना अलाउ करता है और वो क्या ले पाता है। तो इस पे भी प्रोग्नोसिस, कैंसर का प्रोग्नोसिस, किसी ब्रेस्ट कैंसर का प्रोग्नोसिस ठीक है, अच्छा है, लेकिन किन के लिए, कि जो अफोर्डेबल, जो ऑपरेशन करवा रहे हैं, जो रेडियोथेरेपी करवा रहे हैं, जो पूरी मेडिकेशंस प्रॉपरली ले पा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक पुअर पेशेंट है जो ट्रीटमेंट ही नहीं ले पा रहा है, तो उसके लिए तो डिसीज प्रोग्नोसिस इज डिफरेंट। एंड पेशेंट, जो पेशेंट हमारे पास है उस पे उस डिसीज का क्या रहेगा वो थोड़ा सा, तो ये एडिशनल फैक्टर्स भी हैं कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं बीच में कि जैसे अभी कोरोना आ गया, पेशेंट था डायबिटीज का, डायबिटीज याप्पी व्याधि है, अभी उसका सर्वाइवल हमारे हिसाब से उसका प्रोग्नोसिस तो याप्पे है पूरा, मतलब अभी कोई उसका डेथ के चांसेस नहीं थे, लेकिन बीच में कोरोना हो गया और उससे उसकी डेथ हो गई। तो ये एडिशनल फैक्टर्स हो सकते हैं। अ कंप्लीट प्रोग्नोसिस इंक्लूड्स एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, कितने समय का उसके बीच में फंक्शनिंग क्या रहेगा, प्रोग्रेसिव डिक्लाइन, इंटरमिटेंट क्राइसिस, ये बीच बीच में जो नई चीजें जो है हमारे डिसीज में आ सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस है, कोई दूसरे डिसीज के कॉम्प्लिकेशंस या क्राइसिस आ सकते हैं। फिर ये कुछ प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर्स या स्कोरिंग्स जो है मॉडर्न वालों ने बनाई हुई है, ये डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस के लिए हैं, अलग अलग डिसीजेस में। जैसे कैंसर पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, कैंसर के लिए मोस्टली बहुत सारे ये जो इंडिकेटर्स या टूल्स बनाए हुए हैं, इंडिकेटर स्कोरिंग टेक्निक्स बनाई हुई है। जैसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन में एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट है, कैंसर में ये बहुत सारे ग्लासगो या पैलिएटिव प्रोग्नोस्टिक इंडेक्स वगैरह इस तरह के बनाए गए हैं। या फिर क्रिटिकली जो आईसीयू के पेशेंट्स हैं उनके लिए ये एक अपाची 2 स्केल जो है ये बनाया गया है, ऑर्गन फेलियर में सोफा स्कोर है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्कोर या स्केल्स जो है प्रोग्नोसिस के लिए खास करके जो है बनाए गए हैं। सो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्नोसिस जो है उसमें है कि क्या जरूरत है, क्यों है इसकी जरूरत प्रोग्नोसिस को डिसाइड करने की। तो डिसीजन मेकिंग के लिए कि हमें क्या करना है। जैसे मैंने शुरू में ही बोला था कि डायग्नोसिस तो हमने कर लिया, लेकिन अब आगे क्या करना है, इसको ट्रीट करना है नहीं करना है, या किस तरह से ट्रीट करना है, तो उसको वो डिसीजन मेकिंग करने के लिए और पेशेंट मैनेजमेंट के लिए, तो इसमें जो है बहुत इम्पोर्टेंट है प्रोग्नोसिस का पहले पता होना या प्रोग्नोसिस करना। तो whether to start certain treatment or to withhold or withdraw the treatment, कौन सी चिकित्सा चालू करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना काल में हम ये देख ही रहे हैं कोरोना पे कि क्या चालू करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद में कौन सी चीज रोक देनी है,
कौन सी चीज इफेक्ट नहीं कर रही है, किसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसको विथहोल्ड करना है या विड्रॉ करना है। तो ये सारी भी चीजें जो है हमें डिसाइड करने के लिए जरूरी है प्रोग्नोसिस। लास्टली अगर हम कंक्लूजन पे आएंगे तो इन सारी चीजों का उद्देश्य यही है, जो मेरा तात्पर्य था या जो हमारे आचार्यों के का जो हमारे लिए जो एक मार्गदर्शन या एक गाइड है इसके बारे में, कि जो भी डिसीज हम डायग्नोस करते हैं तो उसकी साध्यता हमें पता हो, उसके साथ ही हमें उसके साध्यता का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी डिसीज क्यूरेबल है, कौन सी डिसीज ट्रीटेबल है, किसको हमें ट्रीट करना है, किसको हमें छोड़ देना है या बता के चिकित्सा करनी है कि ये ठीक तो नहीं होगा लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं चिकित्सा। तो सबसे पहले तो है साध्यता की सम्यक परीक्षा करके ही साध्य रोगों की चिकित्सा प्रारंभ करनी चाहिए। जो साध्य है उनकी चिकित्सा करें, फिर साध्य रोगों को असाध्य समझकर उसकी उपेक्षा करें। कई बार हम लोग मिसगाइड हो जाते हैं और नहीं ठीक से समझ पाते हैं, और साध्य है रोग बिल्कुल सिंपल चीज होती है लेकिन हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जैसे अभी हो रहा है कि जो भी पेशेंट बुखार आया, सर्दी खांसी हुई तो सब डर जाते हैं कि अरे कोरोना तो नहीं हो गया। तो इस तरह का भी जो है होकर के हम कई बार जो है साध्य रोगों को असाध्य सोच करके उसकी उपेक्षा कर देते हैं या फिर असाध्य रोगों को साध्य समझकर उसकी चिकित्सा कर देते हैं। तो ये भी नहीं करना है हमें। तो ये दोनों चीजें हो गई। उसके बाद में ये जैसे हमने पहले भी बोला था कि अगर हम इस तरह से चिकित्सा करते हैं और उसमें अगर अपयश मिलता है तो निंदा होती है और धर्म अर्थ यश जो है सबकी हानि होती है। तो याप्य और प्रत्याख्य जो है ऐसी व्याधियों को सावधानी पूर्वक इनका निदान करके और परिजनों को जो है उसके बारे में पूरा ज्ञान दे करके उनको सब कुछ ठीक से बता करके और वस्तुस्थिति का पूर्ण ज्ञान कराकर तभी जो है चिकित्सा करनी चाहिए। एक ये बड़ा अच्छा कोट मुझे मिला था prognosis से related कि before asserting a prognosis on any patient, always be objective and never subjective. For telling the patient that he will win the treasure of life, but then later discovering that he will lose, will harm him more than by telling him that he may lose, but then he wins. अगर हम पेशेंट को पहले से ये बोल करके करेंगे कि देखो हम ट्राई कर रहे हैं और वो जीत जाता है, वो अच्छा हो जाता है, तो ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन अगर हम उसको एक गलत आश्वासन देते हैं कि हम अच्छा कर देंगे और वो नहीं हो पाता है, तो वो बहुत गलत चीज है। तो उससे हमें बचना चाहिए। इसके साथ में मेरा व्याख्यान खत्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच पेशेंटली सुनने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, ma'am. Because this was a lecture very good in some aspects कि हमें कुछ नए insights, नए views इसमें मिले। इस पर मैं अपने चेयरपर्सन सर को भी इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी बिकॉज एट द स्टार्ट ऑफ द सेशन आई मिस्ड दैट पार्ट। बट इससे पहले कि मैं अपने चेयरपर्सन सर को इंट्रोड्यूस करूं और उनके रिमार्क्स लूं, मैं हमारे जो यहाँ पर हमारे डिग्निटरीज जो ज्वाइन किए हैं, जो रोग निदान विषय के विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं किसी इनपुट या इंटरैक्शन के लिए या उनके मन में कोई प्रश्न हो तो उसके लिए उनसे आमंत्रित करती हूँ। हम एक दो क्वेश्चंस ले सकते हैं। तो एनी क्वेश्चंस or any inputs from the participants, we request you to please unmute yourself and please we can interact. We have our resource and chairperson and other dignitaries, we can interact with each other. So any questions or any interaction or any clinical experience which you would like to share? Okay. थोड़ा ऐसा है कि मुझे लगता है हमने आसाटी सर से उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो अब इस कड़ी में फिर आगे बढ़ते हुए हम अपने आज के सेशन के जो चेयरपर्सन हैं प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद असती सर, उनको पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, क्षमा मांगते हुए कि सेशन की शुरुआत में मैं नेट वगैरह की इश्यूज से वो कर नहीं पाई थी सर। Today we have as our chair Professor Dr. Govind Asati sir. He is a professor in the Department of Rog Nidan, Government Ayurvedic College, Nagpur.
सर का 31 साल से भी ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिनमें उन्होंने बहुत सारे पीजी और पीएचडी स्टूडेंट्स को गाइड किया है। हाँ जी सर। हाँ, थैंक यू। यस सर। और सर को बेस्ट टीचर्स अवार्ड भी 2001 में बैतूल में मिल चुका है। वैद्यनाथ धन्वंतरी अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं सर 2005 में, और अभी रिसेंटली 2021 में भी सर को वैद्य खादी वाले पुरस्कार का घोषणा हुई है। सर का पंचकर्म में विशेष इंटरेस्ट है। तो सर आज के इस विषय पर हम आपके रिमार्क्स के लिए और आपके गाइडेंस के लिए आपको ओवर करते हैं सर, माइक हैंड ओवर करते हैं सर। Am I audible? यस सर। Thank you, madam. Thank you very much. First of all, I have congratulate to Dr. Deepti Parasar, madam, who have given the lectures concept of sadhya sadhya in prognosis and its clinical importance. Very nicely presented the lecture, and all the aspect covered by Dr. Deepti madam. मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि हमें चिकित्सा में प्रवृत्त होने के पहले हमें हमारे लिमिटेशंस समझ में आना चाहिए, जो कि साध्या साध्यता के रूप में बताया गया है हमारे संहिता ग्रंथों के अंदर में। और यदि हमें हमारे लिमिटेशंस अगर समझ में आ जाते हैं तो हम सफल चिकित्सक हो सकते हैं। जैसा कि मैडम ने बताया कि लक्षणों के आधार पर व्याधि की साध्यता बताई गई है। हमें व्याधि के अपवाद भी जानना चाहिए हमें, और जो साध्या साध्यता के अंदर जो बताए हैं, सुख साध्य व्याधि है, कष्ट साध्य व्याधि है, याप्य व्याधि है और प्रत्याख्य व्याधि है। इसको हमें समझना बहुत आवश्यक है। अभी हम जैसे देख रहे हैं करके कि जब भी हम चिकित्सा करते हैं तो हम टॉल क्लेम करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। हमें हमारे लिमिटेशंस के आधार पर कौन सी व्याधि चिकित्स्य है और कौन सी व्याधि अचिकित्स्य है, यह हमें समझना बहुत आवश्यक है। और यदि हमें जिस दिन ये समझ में अगर आ गया है तो हम बता सकते हैं करके कि ये रोगी आयुर्वेद पैथी से ठीक होगा या नहीं होगा। अगर आयुर्वेद पैथी में उसका इलाज अगर नहीं है तो हमें इतनी क्षमता होना चाहिए कि उस पेशेंट को सर्जिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या उस पेशेंट को किसी अन्य पैथी की आवश्यकता है, ये बताने के लिए हमारे में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यदि हम रोगी को अगर समझ सके, रोगी को अगर हम उसका व्याधि का ज्ञान अगर अच्छे से कर सके, तो हमें उसका इम्पोर्टेंस हम बता सकते हैं कि रोगी कितना बलवान है, ये व्याधि कितना बलवान है। ये दोनों चीजें भी हमें समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम चिकित्सा में प्रवृत्त होते हैं, अगर हमें व्याधि की साध्यता ही मालूम नहीं है तो हम कभी-कभी ऐसा होता है कि टॉल क्लेम के कारण अपयश के भागी भी हो सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे आयुर्वेद चिकित्सक कभी भी अपयश के भागी न हो। हमें व्याधि की साध्यता समझ में आना चाहिए। जैसा कहा भी गया है, वातव्याधि के बारे में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट हो जाते हैं। वातव्याधि के बारे में बताया गया है कि वातव्याधि असाध्यो अयम दैव योगेन सिद्ध्यन्ति। हमने देखा है कि बहुत सारे पक्षाघात के पेशेंट, अर्दित के पेशेंट, मतलब ऋतु के अनुसार रिलैप्स भी होते हैं। तो हमें उसकी प्रोग्नोसिस समझ में आना चाहिए कि चिकित्सा करते समय हमें उसमें रिलैप्स व्याधि हो सकती है। दूसरा उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि जैसे तमक श्वास का पेशेंट है, मधुमेह का पेशेंट है, एसएलई का पेशेंट है, अम्बात का पेशेंट है। ये व्याधि हमें मालूम है कि जब तक हम इसकी चिकित्सा करते हैं तब तक ये व्याधि ठीक रहता है, यानी कि याप्य कैटेगरी में है। उसमें भी हमें समझ में आना चाहिए कि व्याधि कितने दिन में हम ठीक कर सकते हैं। ये अगर हम बता सकते हैं तो पेशेंट को हम उसके साथ में जस्टिस करते हैं। दूसरी बात यह है कि पेशेंट का आर्थिक नुकसान भी ना हो, ये हम ध्यान में रखते हुए उसे हम योग्य सलाह दें। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान में रखें। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें कौन से पेशेंट को रेफर करना है और कौन से पेशेंट को आयुर्वेद से ट्रीट करना है, ये हमें, जब तक हम व्याधि की साध्यता नहीं समझ सकते हैं तो हमें उसका हम इलाज नहीं करना चाहिए। और यही बात दीप्ति मैडम ने अपने इस लेक्चर के अंदर में बहुत अच्छे तरीके से बताई है। उन्होंने सारे पहलुओं को उन्हें कवर किया है, और लास्ट में जो उन्होंने प्रोग्नोसिस वाला बताया मुद्दा कि हमें हमें हमारी लिमिटेशंस समझ में आना चाहिए, और वो लिमिटेशंस के आधार पर ही हम चिकित्सा में सफल होंगे, नहीं होंगे। या अगर हम पेशेंट के रिलेशंस को प्रोग्नोसिस बता करके अगर उसकी चिकित्सा करते हैं, हो सकता है कि पेशेंट का विल पावर अच्छा हो, चिकित्सा के चतुष्पाद अगर हमारे साथ में हो तो हम रोगी को बहुत अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हैं। कुछ व्याधियां औषधि साध्य होती है, कुछ व्याधियां संशोधन साध्य होती है, पंचकर्म साध्य होती है, कुछ व्याधियां
शस्त्र साध्य होती है, कुछ व्याधियां अग्निकर्म साध्य होती है, कुछ व्याधियां क्षार कर्म साध्य होती है और कुछ व्याधियां असाध्य होती है। हमें अगर हमारे लिमिटेशंस अगर समझ में आ गए तो हम उसके आधार पर योग्य योग्य प्रकार से उस व्याधि की चिकित्सा हम कर सकते हैं। यही बात हमें साध्या साध्या कंसेप्ट में समझ में आना चाहिए कि विच डिसीज इज ट्रीटेबल एंड विच डिसीज आर नॉट ट्रीटेबल, ये हमको समझ में आना चाहिए। हमारे स्टूडेंट को भी हम ये बात अगर बताते हैं तो ताकि हमें हमारे लिमिटेशंस के आधार पर ये व्याधि हम ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये हम साध्यासाध्यता के सिद्धांत को अगर अच्छे से समझ ले तो हम चिकित्सा में हमेशा यशस्वी होंगे और हमें सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस लेक्चर के ऊपर में, मैडम ने बहुत सुंदर तरीके से अपनी बात कही है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। दीप्ति मैडम, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू मैडम। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं सर, आपके इतने अच्छे वैल्यू एडिशन के लिए, क्योंकि हम सबके लिए एक मैसेज ही बहुत जरूरी है कि टाइमली रेफरेंस हो और हम अपनी लिमिटेशंस को पहचानें। तो इस मैसेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं डॉक्टर अतुल वार्ष्णेय सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर जी सर, आपके रिमार्क्स के लिए आमंत्रित। धन्यवाद। मैं आज बहुत अच्छा लग रहा है, गोविंद असाटी सर हमारे साथ हैं। असाटी सर इस रोग निदान परिषद की स्थापना के बहुत स्तंभ हैं, नींव के पत्थर हैं। और सर चूंकि प्रैक्टिस में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, मुझे ज्ञात हुआ सर के बहुत स्टूडेंट सभी सर बताते हैं कि बहुत अच्छा सर का अनुभव, प्रैक्टिस लगातार है, तो स्वाभाविक है इस एक्टिविटी में बहुत ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे। और बहुत अच्छा लगा सर ने स्वीकार की, इसी बहाने सब लोगों को दर्शन हुए सर के। और मैं अपने परिषद के सभी लोगों को विशेष इस बात के लिए बताना चाहूंगा कि परिषद की स्थापना में सर का एक बहुत बड़ा रोल है और वो हिडन रोल है, लोगों को पता नहीं, लोगों को जानते नहीं है कि सर ने किस तरीके से हम लोगों को एक साथ जोड़ा है। और जैसा दीप्ति जी तो हमारी शुरू से वक्ता कोऑर्डिनेटर सब रही हैं, और वो जो हमारा परिषद का उद्देश्य शुरू से रहा है कि जो हमारी प्रतिभाएं हैं वो किसी न किसी रूप में हम सब लोगों के सामने आए, और हम उन सब चीजों में काफी हद तक सफल हुए। आज उसी के कारण ये 38 लेक्चर हम लोगों का हुआ है, और ये श्रृंखला हम 40 तक तो अभी फिलहाल इस मंथ तक ले ही जाएंगे। उसके बाद फिर कुछ नए रूप में हम अपने श्रोताओं के साथ, अपने दर्शकों के साथ रहेंगे, जिससे रोग निदान परिषद की जो एक विशेषता है कि हम एक पथ तैयार करते हैं। हमने एक रास्ता इस वेबिनार की सीरीज में कोरोना के काल में एक जो नया रास्ता निकाला रोग निदान परिषद ने कि पर्टिकुलर जो लोगों के अनुभव थे उन्होंने अपने अपने लेक्चर दिए, और सभी लोगों के सहयोग से हमें उसमें सफलता मिली है। इसके लिए मैं अपने परिषद के सभी सदस्यों को विशेष बधाई देना चाहूंगा कि सब लोगों ने बहुत अच्छे से अपने सब कार्यों को किया। हमारी सबकी बहुत इच्छा थी, दिल्ली से मैडम शालिनी जी पे चूंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा है और अय्या वर्ल्ड फेम इंस्टीट्यूट है, विभाग में कम लोग हैं, मैडम के पास बहुत ज्यादा व्यस्तता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने व्यस्त समय में कोऑर्डिनेटरशिप अपनी स्वीकारी और बड़े अच्छे तरीके से सबके लिए कार्य कर रही है। मैं आज के इस आयोजन के लिए मैडम का, मैडम दीप्ति जी का, मैडम शालिनी जी का, गोविंद असाटी सर का और हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक आभार अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। सर मैं पहले तो इसके योग्य नहीं हूँ, मैं भी एक मेंबर हूँ, मेरा ये कार्य था। तो इस शब्दों के साथ सर, मैं हमारे साथ जुड़े हुए जो भी हमारे डिग्नेटरीज हैं, जो हमारे कलीग्स हैं, डॉक्टर अनुराग, डॉक्टर नीलम, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। और जो भी स्कॉलर्स भी जुड़े हुए हैं इस ज्ञान के बांटने की श्रृंखला में, उन सभी का हार्दिक आभार करते हुए आज के इस सेशन को समाप्त करने की अनुमति चाहती हूँ चेयरपर्सन सर से। We can over the program. Thank you very much, madam. थैंक यू वेरी मच सर, और मुझे क्षमा करिएगा, मेरा नाम का प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया था। कोई बात नहीं मैडम, सारी मैडम कोई बात। ठीक है सर, थैंक यू सर, एंड वी थैंक यू ऑल फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर एंड स्पेयरिंग सच ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम, बिकॉज अभी हर जगह एक्टिविटीज सारी शुरू हो चुकी हैं। आप सभी ने बहुत अपना कीमती समय इस श्रृंखला को दिया, इसके लिए हम पूरे परिषद की ओर से आप सभी का हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू दीप्ति।
And we thank our resource, Dr. Deepti ma'am, once again, because ma'am was our savior for this lecture. It's my pleasure and my responsibility. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank you, one and all. And thank you, Vashne sir and Pavan sir for being the pillar strength. And Dr. Ganesh, वो इतने व्यस्त समय में से भी शुरू करा रहे हैं. And everyone for supporting. Thank you very much.